ઉપકારી તીર્થંકર પરમાત્મા ભવ્ય જીવોના ઉપકારને માટે સરસ મજાના યોગના ગ્રંથની અંદર બતાવ્યું છે જીનેશુ કુશલમ ચિત્તમ. સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જો કોઈ હોય તો પરમાત્માના વિશે માત્ર આપણું મન ક્યાંક એવું સંશુદ્ધ હોવું જોઈએ અને તેને પ્રણામ નમસ્કાર વગેરે કરવા જોઈએ. એને જ આ પ્રકારના યોગ કહેવામાં આવ્યા છે. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન. જમણી બાજુ રેચક કોરક રેચક કોરક ડાબી બાજુ રેચક કોરક રેચક. ગરદન ઝુકાવી દો, પાછળ ખેંચાણ આવવું જોઈએ. લઈ જાઓ જમણી બાજુએ એકદમ ધીરે 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 પાછળ. ડાબી બાજુ નીચે. સેકન્ડ રાઉન્ડ એકદમ સ્લો. ખેંચાણની અનુભૂતિ થવી જોઈએ તમને. રિવર્સ. સેકન્ડ રાઉન્ડ. ખેંચો જમીન તરફ, ખેંચો એકદમ અંદરની તરફ ખેંચો, ખેંચો હજી હજી ખેંચો. ફરી બહારની તરફ ખેંચો એકદમ. ફરી અંદર હળવેકથી ખેંચો. બંને પગ વચ્ચે 1 થી 1.5 ફૂટ અંતર રાખો. બંને પગના આંગળા અંદરની તરફ ખેંચેલા. સ્ટોપ. બંને હાથ પાછળ, બંને પગ ગોઠણમાંથી વાળવાના છે. આટલા નજીક લાવો થોડા. પેલા એકવાર જુઓ કેવી રીતે કરવાનું છે. સ્ટાર્ટ. હવે આ પગ અહીંયા લેતી વખતે આ પગને આમ નથી કરી દેવાના. જો પેલું ધ્યાન રાખવાનું, તો બરાબર નહીં આવે. ચાલો સ્ટાર્ટ. સીધો રાખો. બીજો પગ સીધો રાખો. સ્ટોપ. પૂરક રેચક પૂરક રેચક પૂરક રેચક પૂરક રેચક પૂરક રેચક પૂરક રેચક પૂરક સીધા થાવ. રેચક સીધા થાવ. પૂરક રેચક પૂરક રેચક છેલ્લે પૂરક રેચક. બંને પગ સાથે નજીક લેવા. નજીક બટરફ્લાય શું કરવાનું છે ને? શું કહેવાય? બટરફ્લાય. લેલો નીચેથી ચાલો. પૂરક રેચક 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 છેલ્લે પૂરક રેચક. પૂરક રેચક. સ્ટાર્ટ રાખો જીને. પૂરક છેલ્લે પૂરક. હાથ ઊંધા કરો.
ખેંચો, પાછળથી ખેંચાણ આવવું જોઈએ. હાથ સ્ટ્રેટ, પેટ को खींच के पकड़ के रखो. રેચક. ધીરે ધીરે હાથને નીચેની તરફ. આ પેલું આસન તાળાસન. એના ફાયદા મેં કીધા કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર થાય, ફેફસાની તાકાત વધે, દમ ટીબી હોય તો મટી જાય. બીજું આસન 1 થી 1.5 ફૂટ પૂરા, 1 થી 1.5 ફૂટ સમાંતર પગ કેવા રહેવા જોઈએ, આગળ પાછળની સમાંતર. ચાલ કટી ચક્રાસન. પૂરા શ્વાસ લેતા લેતા હાથને ઉપર કરવાનું. રેચક. પૂરક. બીજી બાજુ રેચક. હજી ફેરો. જમણા હાથના અંગૂઠા પર દ્રષ્ટિને લઈ જાઓ. પૂરક. રેચક. પૂરક. રેચક. પૂરક. રેચક. પૂરક. શ્વાસ લો. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફરો. ધીરે ધીરે હાથને ટચ કરીને બીજી તરફ જાઓ. ઉપરની તરફ જુઓ, ઉપરની તરફ જુઓ. પૂરક. રેચક. ફરી પૂરક. રેચક. પૂરક. પૂરક. રેચક. પૂરક. રેચક. હાથને ઉપર તરફ ખેંચવાના, પેટને અંદર ખેંચવાના. પૂરક. ધીરે ધીરે પગના પંજા ઊંચા કરો. હાથ કાનની પાછળ, કાનની પાછળ. આપણા જે કાન છે ને, બે કાન છે એની પાછળ લો. હાથ બંધ કરો. પાછળથી લોક કરો. પાછળ પાછળ. રેચક. પેટને અંદર. પૂરક. કાનની પાછળ લોક કરો. કાનની પાછળ લો. નીચે જો, નીચે જો. પગના પંજા ઉપર ટકો બેલેન્સ કરો. રેચક. ફરી પૂરક. બંધ કરો. હાથ પાછળ નીચે જો. પાછળથી લોક કરો. રેચક. थोड़ा सा રેચક. झुकते जाओ, झुकते जाओ. धीरे धीरे अपने घुटने को अपना मस्तिष्क लगा दो. अंदर की ओर अपनी पीठी को खींचा, पीठी को खींचा. રેચક. ઘૂંટણ છે ને, પૂરક. આપણું માથું લગાડી દો. બસ કઈ નથી કરવાનું. રેચક. ધીરે ધીરે કોશિશ કરો. એ ઘૂંટણ આગળ નહીં લાવવાના. ખાલી માથું લઈ જાઓ અંદર. ધીરે 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 મસ્તિષ્ક को अंदर खींचो. પૂરક. રેચક. જેને કમરનો દુખાવો હોય એ આસન ન કરે. પૂરક. રેચક. પૂરક. રેચક. એક વસ્તુ મેં કીધી એ ધ્યાન રાખવાની છે, યોગમાં શરીર સાથે ક્યાંય પણ જબરજસ્તી કરવાની નથી. સહજ અભ્યાસ કરતાં 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 ધીરે 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 શરીર ટેવાતું. શરૂઆતમાં મુશ્કેલ લાગે પણ પછી અભ્યાસથી શરીર ટેવાતું. Why we have to do the yoga? योगा हमें क्यों करना चाहिए? एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि मुझे योगा की ज़रूरत क्या है, लेकिन जो एनवायरनमेंट स्ट्रेस में हम लोग जीते हैं, जैसे बाय चांस अगर हमारी गाड़ी सिग्नल के पास भी खड़ी रहती ना तो सबसे पहले मेरी गाड़ी निकल जाए. कहने का मतलब ये है कि हम लोग सतत एक तनाव स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं और स्ट्रेस में से अपने को रिलैक्स होने के लिए है योगा की सिस्टम.
देखिए, अगर टेंशन है तो उसके साथ रिलैक्सेशंस भी है। अगर आपके पास योगा का कुछ माध्यम है, योगा के कोई सिस्टम्स है जिससे आप एक्सरसाइज करने के माध्यम से उसको रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ सिंपली कुछ नहीं किया, मेरे 2 हाथ को इस तरह से क्लोज किया और टाइट। मेरे को टेंशन आ रहा है, टेंशन के टाइम इसे ज़ोर से प्रेस करो, एकदम ज़ोर से, और ज़ोर से हो सके उतना फोर्सफुली उसे प्रेस करो। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथ को छोड़ दो। खुद म खुद आप टेंशन में से बाहर निकल जाएंगे। फिर से वापस करो, यू जस्ट फील, मुझे टेंशन आ रहा है, मुझे टेंशन आ रहा है, आई एम टेंस, आई एम टेंस, आई एम टेंस। रिलैक्स, दोनों हाथ को धीरे से छोड़िए। देख लीजिए, आप जो टेंशन के अंदर जा रहे थे 2 मिनट में से निकल गए बाहर। इसी तरह से अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको लगता है कि नहीं, बहुत सारे मेरे को मोबाइल्स कॉल्स, टेलीफोन, द स्ट्रेच ऑफ वर्क इज़ गोइंग हाई, मैं मेरे माइंड को इनबैलेंस होते हुए देख रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं एक काम के बाद ये काम कैसे कर पाऊँगा। सिंपली कुछ मत करो, अपने दोनों हाथ को इस तरह से करो, रिलैक्स हो जाओ। अपने चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हाथ को पीछे की ओर खींचा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर नीचे की ओर खींचा, धीरे धीरे वापस फिर से मैंने मेरे राइट हैंड को लिया ऊपर की ओर, धीरे धीरे एक प्रकार सा रिलैक्स। सिर्फ अपने को क्या करना है, जब भी टेंस आता है उस सिचुएशंस में से निकलने के लिए कोई भी एक्सरसाइज या क्रिया का माध्यम ले लो। सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, दोनों हाथ को इस तरह से रखा, बाहर की ओर फैलाया, रिलैक्स। फिर से टेंस, टेंशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। छोटे छोटे माध्यम से, छोटी छोटी एक्सरसाइज से, छोटी छोटी चीज़ से जो टाइमिंग हम लोग को टेंशन आता है, वी कैन आउट ऑफ इट। हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे पहला स्टेप्स कि अपने को अपने बेड से कैसे उठना है। उसके लिए हम लोग सिंपली देखेंगे, एक आदमी सोने के टाइम भी एक चीज़ लेके सोया रहता है। इस तरह से अगर वो सोया है, कोई भी अवस्था में सोया है, उसके माइंड में एक चीज़ है, 6 o'clock, हाँ मुझे ऑफिस जाना है। आपने क्या किया, आपने आपके बैक को स्ट्रेट दे के खड़े हुए, जैसे नॉर्मली इस मगज में एक चीज़ लेके सोए, मुझे 6:30 को योगा में जाना है। नहीं, इससे क्या हो गया, आप एक बैक पेन के रोगी बनना चालू हो गया है। ये आपने डेवलप करना चालू कर दिया, बिकॉज यू डोंट नो इवन हाउ टू वेक अप फ्रॉम द बेड। उसके लिए एक बोलते कि हर एक चीज़ को एक रिलैक्सली, शांति से करो। जिस तरह से हम लोग ने एनिमल्स को देखे, बर्ड्स को देखे, दे आर लिविंग विद द नेचर, दे डजंट रिक्वायर्ड एनी मेडिसिन्स। कभी उन लोगों को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्यों? कभी देखा है आपने कोई बिल्ली, कैट, डॉग, उसने मेडिसिन ली है? क्यों नहीं लेते? बिकॉज वो लोग क्या करते, अपनी लाइफ को बैलेंस कर देते कुदरत के साथ। सबसे पहला स्टेप्स मैं बताता हूँ, हाउ टू वेक अप फ्रॉम द बेड। आपको क्या करना है, अगर आप सोए हैं, सबसे पहले आप क्या करो, आपके बॉडी को पूरा खींचो, अपने हाथ को बाहर की ओर खींचो, पैर को नीचे की ओर, हाथ को पर्वतासन की मुद्रा में लीजिए। इस तरह से हाथ को दोनों जॉइंट करो, पैर को अंदर की ओर खींचो, फिर से हाथ को खींचो बाहर की ओर, और धीरे लेके आपको इस तरह से झटक दिए बिना रिलैक्सली आपको उठना है। आपकी लाइफ का ये सबसे पहला स्टेप्स है, हाउ टू वेक अप। ये अपना फर्स्ट स्टेप्स हो गया कि अपने को किस तरह से उठना है। उसके बाद योग की एक बहुत ही महत्व की क्रिया है जिसे कहते हैं नेत्र धोती। नेत्र धोती यानी आँखों को, आई को क्लीन करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आँख को क्लीन तो करते हैं,
सेकंड स्टेप्स में आपको ये देखना है, ब्रश करने के बाद जैसे हम लोग टीथ क्लीन करते हैं, आफ्टर डूइंग योर टीथ क्लीनिंग्स हमें क्या करना है, मुंह में पानी को थोड़ा सा होल्ड करना है इस तरह से, यानी एक गिलास में थोड़ा सा पानी पी के उसे होल्ड करके रखना है इस तरह से, और दोनों हाथ से ठंडे पानी की छालक अपने आँख में डालना है और धीरे धीरे से मुँह से जो होल्ड किया हुआ पानी है उसे धीरे से निकालना है। रिपीट, मैं सेकंड टाइम बताता हूँ। इसे नेत्र धोती कहते हैं, यानी आपकी आँख को क्लीन करने की। अगर आपके आँख को चश्मा है या चश्मे के नंबर है, अगर आप ये क्रिया दिन में 2 बार करेंगे तो डेफिनेटली आपके आई के जो स्पेक्स के नंबर है इट विल बी कम इन कंट्रोल। अदरवाइज अगर आपको चश्मे नहीं है तो आपको चश्मे लाइफ में स्पेक्स कभी भी नहीं आएंगे। किस तरह से क्रिया करना है, मैंने पानी को एक मुंह में होल्ड किया, और धीरे धीरे के पानी को बाहर निकाला। ये आपका सेकंड स्टेप्स है। थर्ड स्टेप्स, अगर आपको योगा अभ्यास स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये पॉइंट ज़रूरी है कि आपका स्टमक्स क्लीन होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए यानी लैट्रिन्स वगैरह की क्रिया करने के बाद ही आप योगा अभ्यास चालू करें या स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आपको कॉन्स्टिपेशंस का प्रॉब्लम हो सकता है एंड यू गेट द साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग को कॉन्स्टिपेशंस प्रॉब्लम्स होते हैं, बोलते हैं हमारा स्टमक सुबह क्लीन नहीं आता है। और एक चीज़ वो भी है, जिस दिन आपका स्टमक क्लीन नहीं है उस दिन आपको क्या होता है, पूरा दिन अनइजीनेस फील होता है, सुस्ती रहती है, कोई भी काम करने में आपका दिल नहीं लगता है। थर्ड स्टेप ऑफ द योगा, आपका स्टमक क्लीन होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हो सके तो सुबह उठने के बाद 1, 2 या 3 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद मैं आपको 2 छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। वो करने के बाद क्या होएगा, आपको इमीडिएट आपका स्टमक क्लीन आ जाएगा। स्टार्ट विथ नॉर्मली 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर या 3 ग्लास ऑफ वाटर एज पर योर कैपेसिटी। आपको पानी पीना है। क्या करना है, पानी पीने के बाद आपको खड़ा रहना है। सबसे पहले जो एक आसन बताया उसका नाम है ताड़ासन। हमारे जो भी आसन है वो कुदरत पे से, यानी पशु पक्षी या एनिमल्स पे से ढूंढे गए हुए हैं। वो करने से क्या होता है, अपने को टेंशन में रिलैक्स होता है। मैं सबसे पहले एक सरल सा आसन बताता हूँ, ताड़ासन करके। ये करने से आपका टेंशन है वो तुरंत आपको यू फाइंड इट कि एकदम रिलैक्स हो चुका हूँ। क्या करना है, दोनों पैर को नज़दीक रखना है। ये आसन का नाम है ताड़ासन। क्या करना है, धीरे धीरे सांस को लेना है पूरक। दोनों हाथ को ज्वाइंट करके पीछे की ओर खींचो, स्पाइन कॉर्ड पे खींचना है, इस तरह से करो। अपने स्टमक को अंदर पकड़ के रखो, होल्ड द ब्रीथ। रिचेक करते करते, यानी सांस को छोड़ते छोड़ते धीरे की ओर नीचे आना है। इट सीम्स ए वेरी सिंपल बट सो इफेक्टिव। आई रिपीट इट, देख लीजिए पूरक, धीरे धीरे सांस को भरिए। उसे होल्ड करो, ब्रीथ को पेट को अंदर खींच के पकड़ के रखिए, धीरे धीरे नीचे की ओर लीजिए। यू फाउंड इट कि आपका जो भी टेंशन है वो तुरंत रिलैक्स हो चुका है। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा आसन लेते हैं जिसका नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन यानी अपनी वेस्ट, कमर को रिड्यूस करना। जिस तरह से हम लोग टूवेल को इस तरह से ट्विस्ट करते तो उसमें जो भिगा हुआ थोड़ा भी पानी रहता है ना, वो ट्विस्टिंग हो जाता है। इस तरह से आपको को क्या करना है, अपनी कमर को ट्विस्ट करना है। क्या करना है, धीरे से सांस को लेना है। पूरक यानी इनहेल द ब्रेक एंड रेचेक यानी एक्सहोल द ब्रीथ। धीरे धीरे मैंने सांस लिया पूरक, गहराई से सांस ली। मेरे हाथ दोनों पैरेलल हैं। धीरे धीरे मैं लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता हूँ। मेरी दृष्टि यानी मेरी आई लेफ्ट हैंड के थंब के ऊपर है, मैंने स्थिर की है। मेरे दोनों पैर चिपक के खड़े हैं।
वापस सांस लेते लेते मैं सेंटर में आता हूँ और सांस को छोड़ते छोड़ते रिचक, रिलैक्स। इसी तरह से वापस में पूरक गहराई से स्लोली ब्रीथ ले रहा हूँ। पूरा ऑक्सीजन पॉजिटिविटी मैंने फिलअप की है। धीरे धीरे नेगेटिविटी को मैं बाहर निकालता हूँ। अभी मेरी दृष्टि मेरे राइट हैंड के थंब पे है। पूरा रिचार्ज। नॉर्मली हम किसी के पास टाइम नहीं है, बट वी कैन प्रोवाइड ओनली 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग टू अवर बॉडी। आई एम जस्ट कवरिंग द 10 आसन विच गिव योर बॉडी फुल एक्सरसाइज विथ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके पास टाइम है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ 15 मिनट आपको सुबह करना है। मैं अभी जो बता रहा हूँ, इट कवर मैक्सिमम विद इन 15 to 20 मिनट्स, विच कवर्स योर ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, इन विच keep you stress free and keep your body flexible just like a rubber. थर्ड आसन, इसमें क्या करना है, हो सके उतने दोनों पैर को फैलाना है। पैर को हो सके उतना और फैलाओ, 3.5 फीट। ये आसन का नाम है कोणासन, जो आपके बैकवर्ड बेंडिंग को और अपवर्ड को दोनों को मूवमेंट देते हैं। पूरक धीरे धीरे मैंने सांस को लिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट लेग को टच करके दूसरी तरफ ले गया। ऊपर की ओर दृष्टि को मैंने स्थिर की। यहाँ से मैं देख रहा हूँ ऊपर की ओर। फिर से मैंने गहराई से सांस ली। पूरक रिचार्ज, सांस को छोड़ा। It seems to a very easy exercise but so effective. When you do the practical, you will realize कि इससे आपके बॉडी में कितनी मूवमेंट्स आ रही है। पूरक सेम राइट हैंड साइड, टच योर हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कीप योर नी स्ट्रेट। यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए और ऊपर की ओर देखना है। फिर से इनहेल, पूरक रिचार्ज। फोर्थ आसन, जिसे हम लोग बोलेंगे पर्वतासन। पूरक दोनों हाथ को ज्वाइन किए, नमस्कार मुद्रा। मेरी दृष्टि नीचे की ओर है, दोनों पैर के पंजे ऊपर की ओर है। मेरे स्पाइन कोड पे जबरदस्त खिंचान की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे पैर को मैं नीचे दे रहा हूँ। रिचार्ज फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। धीरे 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 पैर के दोनों पंजे के ऊपर आ रहा हूँ। दृष्टि मेरी नीचे की ओर है। रिचार्ज पैर के पंजे धीरे धीरे नीचे की ओर। ये हो गया पर्वतासन, विच गिव टू योर स्पाइन कॉर्ड, मेक इट योर स्पाइन कॉर्ड फ्लेक्सिबल एंड योर स्टमक विल गो इनसाइड्स। इसके बाद का जो आसन है उसको हम लोग बोलेंगे पादहस्तासन, जो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। नॉर्मली हम लोग को पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करें या फ्रंट बेंडिंग करें। ये आसन करने से क्या होगा, आपको बैक पेन का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इन दिस आसन इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू योर काउट्स। यहाँ पे जो है आपको एक ज़बरदस्त खिंचान की अनुभूति होती है। अगर हम जिम में जाएंगे तो पर्टिकुलर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे मसल्स के लिए या अपने चेस्ट को बिल्ड करने के लिए, लेकिन योगा इस तरह की एक्सरसाइज है विच कवर द ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। छोटे से छोटे चीज़ तक सर्कुलेशन सिस्टम को हम लोग मूव करते हैं। इसका नाम है पादहस्तासन। धीरे धीरे सांस को ली। पूरक हल्का सा झुका मैं। रिचक करते 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 दोनों हाथ को मैंने नीचे की ओर ली। मस्तिष्क को हो सके उतना नीचे की ओर ले लिया। धीरे 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 मेरे घुटने को मेरे मस्तिष्क को लगा दिया। फिर से सांस भरी। पूरक रिचार्ज। ये करने से क्या होएगा, आपको बैकवर्ड बेंडिंग का कभी प्रॉब्लम नहीं होएगा।
प्लस आपका जो मस्तिष्क है, यू विल फाउंड फ्रेशनेस फॉर द फुल डे। जो हम लोग को क्या होता है 15 मिनट 20 मिनट इफ़ यू डू द वर्क वी विल रियलाइज कि नहीं मेरे को थकान सी महसूस हो रही है, मेरे काम में फ्रेशनेस नहीं है। ये आसन करने से यू गेट द एक्सेलेंट पावर ऑफ फ्रेशनेस। रिपीट करता हूँ पूरा। धीरे धीरे सांस भरी, मैंने मेरे हाथ को थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग लिया। धीरे धीरे मैं सांस को छोड़ते छोड़ते अपने स्टमक को अंदर ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपसे बॉडी जितनी रिफ्लेक्ट करे उस हिसाब से कीजिए आप। धीरे 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 मस्तिष्क को मैंने मेरे दोनों नी को टच कर दिया। फिर से सांस लिया पूरा। रिच। हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है अर्ध चंद्रासन। दोनों पैर को इस तरह से फैलाया, धीरे धीरे मैंने सांस ली पूरा। लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर लिया, हो सका उतना मैं झुका। कान के ऊपर से फ्रॉम योर ईयर मैंने इसको इस तरह से झुकाया। एक स्ट्रेच की अनुभूति मेरे को यहाँ पे आ रही है। फिर से मैंने पूरा किया। रिच। यहाँ पे और यहाँ पे योग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है खिंचान और दबान, यानी एक बाजू आपको स्ट्रेच आएगा तो दूसरी बाजू आपको रिलैक्स होएगा। एनी आसन इफ यू फाउंड कि आई कैन डू वेरी इजीली देन यू आर मेकिंग समथिंग मिस्टेक्स। अगर आपको स्ट्रेच की अनुभूति नहीं हो रही है, यू डोंट फील कि मैं आसन करने के टाइम मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। दूसरी ओर करेंगे पूरक। रिच। अपने कान के ऊपर हाथ को रखा है, एकदम हाथ पीछे की ओर है, स्ट्रेच है बॉडी में। पूरक। रिच। ये करने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा पूरे दिन में। सिर्फ मैं 12 आसन को कवर कर रहा हूँ, विच इज़ सफिशिएंट टू रन योर लाइफ फ्लेक्सिबल एंड स्मूथली। उसके बाद जो आसन है, ज़्यादातर हम लोग को प्रॉब्लम होता है नी का, कि हम लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं। अगर बैठ सकते हैं तो लगता है कि नहीं अरे यहाँ पे ज़बरदस्त प्रेशर आता है। आपको क्या करना है, दोनों हाथ को इस तरह से रखना है, गहराई से सांस लेनी है। पूरा धीरे धीरे, जिस तरह से हम चेयर पे बैठते हैं ना, इस तरह से नीचे नीचे बैठना है, धीरे 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 धीरे। अच्छा, अभी हमारा नी और टॉय इट शुड कम पैरेलल इन द लाइन। आपको इतना बैठना है इस तरह से। यहाँ पे आपको प्रेशर की अनुभूति होनी चाहिए। फिर से सांस लो पूरा। रिचक, रिलैक्स। फिर से बताता हूँ पूरा। रिचक। दृष्टि सामने की ओर बैठना है। हो सके एक लेवल को फिक्स कर दो आप। पूरक। रेचर। गुरुदेव ने सोचा कि मैंने सब आसन कवर किए और बॉडी के खड़े खड़े कवर किए। दो चीज़ रह जाती थी, एक तो अपने ब्लड को प्यूरीफायर करती है, क्या करती है, किडनी। तो किडनी को रिलेटेड उन्होंने एक बैठ के आसन लिया और एक आसन लिया गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का, जो अपने बॉडी को कवर कर लेते हैं। ये आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पोस्ट में ऐसा ले लेता हूँ। दोनों हाथ इस तरह से। ये आसन इज सो इफेक्टिव फॉर योर किडनी। अच्छा, किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरीफाई करना। अगर आपको लगता है तो कितनी सरल चीज़ है, लेकिन इससे कभी भी आपको किडनी का प्रॉब्लम्स नहीं होएगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। गहराई से पहले सांस ली, पूरक। रेचक करते करते लेफ्ट हैंड को पीछे लिया और राइट हैंड से पकड़ के पीछे की ओर देखा। फिर से पूरक। सांस ली, सांस को छोड़ी, रेचक। एक चीज़ ध्यान में रखिए, योगा अगर आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो या 20 मिनट करो, रिलैक्सली और शांति से करो। और दूसरा, हर एक आसन 4 स्टेप का रहता है। इनहेल, एक्सॉल, इनहेल, एक्सॉल, यानी सांस लिया, सांस को छोड़ा, सांस लिया, सांस को छोड़ा। आप भी देखो, ये मेरे चारों चीज़ के बीच में क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप है।
कहने का मतलब जब आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे उसके बीच में ऑटोमेटिकली इट इज़ होल्डिंग रिटेन होता है, जिसे हम लोग योग की भाषा में कुंभक बोलते हैं, यानी सांस खुद ना खुद रुक जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी दूसरी और पोजीशन में करेंगे। राइट साइड पे करेंगे। दिस आसन इज रिलेटेड टू आवर किडनी विच इज डूइंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। पूरा गहराई से सांस लिया। सेकंड स्टेप, टेक योर राइट हैंड ऑन द बैक साइड, कीप योर लेफ्ट हैंड see on the back side, get the pressures from this your hand, pura recha. Guruji is found that he is cover all the parts of body, but one seem is skip and its name is gastric problem. ये आसन करने से आपको कभी भी गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, एक माइनर गैस इज ऑलवेज सर्कुलेटेड, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को हेडेक होता है, कभी बैक पेन होता है, कभी हाथ में दुखता है। लेकिन उसको पेन होने का रीजंस ये नहीं है, हमारे बॉडी में रहा हुआ माइनर गैस विच सर्कुलेटेड एंड वेर एवर इज स्टक वी फाउंड पेनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट। उसके लिए आसन है पवन मुक्तासन। कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन द राइट हैंड, पूरक गहराई से सांस लो। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, रेचक। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को एकदम नज़दीक ले लो, पेट को अंदर ले लो, एकदम खींच के पकड़ लो। फिर से पूरक धीरे धीरे हाथ को ऊपर लिए, रेचक लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। आई एम रिपीटिंग सेकंड टाइम। दिस इज एक्सेलेंट फॉर द गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम, दोस हु इज सफरिंग फ्रॉम द गैस एंड एसिडिटी। पूरक रेचक पूरक। फोर्थ स्टेप, रेचक, रिलैक्स। अभी हम लोग लास्ट एक्सरसाइज लेके यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा रिलैक्स और विराम देंगे। नेक्स्ट टाइम्स वी विल डेफिनेटली कम विद समथिंग न्यू, इम्प्रेसिव एंड स्ट्रेच एक्सरसाइज। एक हर एक आदमी में एक छोटी सी चीज़ रहती है, ही ऑलवेज वांट कि मेरा वजन कम कैसे हो, हाउ कैन आई रिड्यूस माई वेट। उसके लिए कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर है नहीं। हाँ, योग बताता है, एक उसमें एक एक्सेलेंट एक्सरसाइज है, वो करने से आपका वजन ऑन द स्पॉट 5 to 10 ग्राम्स रिड्यूस हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड मोटिवेटेड भ्रष्टिका प्राणायाम। उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैर को हो सके उतना लंबा कर देने का, पूरे बॉडी को स्ट्रेच दे देने का, एकदम खींचा ना जावे, दो को हो सके उतने दोनों पैर को फैला दिए। अभी दोनों हाथ को इस तरह से रखना है, धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेना है, आपकी बॉडी को पूरा खो देगा। अभी सिर्फ अपने को 36 टाइम्स अपने पेट को अंदर बाहर सिर्फ करना है, इस तरह से। पेट को अंदर बाहर करो। सांस को लेके फेंकना है जोर से। जोर से और जोर से। रिलैक्स। आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी को कितना सुकून मिल गया, एकदम आराम, रिलैक्स। तो वी विल बी बैक right soon with different exercise of stretch and release and tensions. सूर्योगे मनोजनादिम बिहार में समगामी से बिहार वाराणसी 60 पोर से सूर्योगे पूरी मूल मुर्सी बच्चन कर्म दिशा में सदर मानस लेवेड वाले बोलना सितरा सितरा दिशा में सोते हैं वो सूर्य सरस બધાને આનંદ આવ્યો। સરસ, આવતીકાલે સમયસર પાછા ફરી આપા ભેગા થઈએ અને પાછા આ જ રીતે યોગની અંદર જેટલું રહેલું છે, ऐदाम परिये जेने कहेवाय ए रहेलू छे, ए बधुं आपणे मेळवीए अने आवतीकाले पाछा फरी भेगा थईए अने आनंदमां भेगा थईए। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो शासन देव की।